Still here. Let's see. We have Nisha, Kajal, Shivali, Shivanshi. Okay, okay, so the code is was ready as before. The only change in the code is instead of using I had made two mistakes in the code. The first one was using np dot utils instead of using np underscore. Okay, so I have actually removed the whole part. I have directly used the two categorical because I have imported two categorical, right? So I can directly use it. There is no point in using the base class for this thing. So I have removed that part. I have written two categorical directly for both these two lines. The other mistake was in the spelling of kernel, Kernel. Okay, instead of A, we have to write it as E. Okay, everything else is same, and I have reduced the number of iteration, number of epochs. Number of epochs basically means number of times that our algorithm will run for the whole data. So for 60,000 images, our training will model will run for 10 times. Okay, after 10 times, our model will stop running. I'm going to run our model. Okay, so that it will start training again, and this time we'll have a look at it. As you can see, it is taking 128 images at a time because we defined our batch size as 128, which means 128 images will be trained at a time. Okay, and it will be done for all the 60,000 images, and it will be repeated for 10 times. So as you can see, as the training is increasing, uh, it is estimating the time that it is going to take for the training, and at the same time, as you can see, as the training is increasing, the loss is decreasing slowly and steadily. The loss is decreasing and the accuracy here is increasing, and this is what happens with the training, right? This is what our uh, purpose is, so that our loss is minimum and our accuracy is high, right? So we are going to see that. It's going to take a bit of time. Okay, so we'll have to stick for about 10-12 minutes to see all the 10 epochs, and on the basis of that, we'll have a look at how well the output is. It could have also passed on this variable to history, actually, so that you guys could have seen what you're basically plotting here. I'm adding a few more code that you should use while training in order to see how the training has worked basically. Okay, so I'm going to use plt.plot. Okay, uh, history history dot history or I want to see the history of accuracy. CURECY accuracy, um, and I want to give it a label. Okay, label will be accuracy. Okay. And the other thing that I want to plot in the same figure is validation, right? Validation accuracy. That will be validation, val underscore accuracy, and I'm going to write this validation accuracy. Okay, and I want to plot this thing with labels for the x-axis and the y-axis. The x-axis represents the epochs, right? And the plt dot y underscore sorry y-axis y-axis represents accuracy. Okay, okay. And let's limit. Let's use the legend here. Plt dot legend, and let it decide to have its best position. Okay, and yeah, it will show. It will show us the figure, and on the basis of that, we can see how well it is. It is doing, right. So it will show us how our model has basically trained itself. Okay, so we'll wait for it a bit so that it has completed training first.
We could also have done his model summary. We could have also seen the model summary. So every time you train a model, you should be looking at the summary, which is the architecture, which basically shows the architecture of your the architecture that you're drawing. Okay, and besides this, what you can do is besides that we can, if you want to see one of the example images, some of the example images, what you can do is you have training images, right? X-train. If you ever want to see them for the images that they are, let's suppose you want to see the images that you are training. So what you can do is plt.imshow. Okay, imshow is the method, is the function which allows us to see the images. Okay, plt.imshow, and you can pass this x underscore train. Okay, let's suppose you want to see the uh, let's say you want to see 10 images. Okay, 10 images for item in range 10, right? And we are going to pass it inside it, and we are going to pass it the variable item here, right? So that for the first zeroth, it will print the zeroth one, first one, second one, third one, fourth one, fifth one, like that. Okay, and plt.show, right? Before, just below that, you can do plt.show. That will show all the images that we have in here. What happened here? It's not normal actually. The reason for that is I forgot to expect. So we are still into epoch number two. Okay, this is, as you can see, the accuracy has increased to 89%. 0.89 basically means 89%. So by the time we have reached the second epoch of our training, the accuracy is already really high, and it approaching 90%, as you can see. Slowly and steadily, it will increase and grow across 90. And the longer you let your algorithm run, uh, the more higher accuracy it will reach. Okay, एक particular point of time तक accuracy बढ़ती रहती है. And from the looks of it, by the time the second epoch will be complete, we'll have the 90% accuracy. हालांकि अगर आप यहाँ पे देखो, जो हमारा ट्रेनिंग का लॉस है 0.8565 है, लेकिन वैलिडेशन का लॉस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, 12346, विच इज अ रियली लार्ज वैलिडेशन लॉस. इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा एल्गोरिथम, लेकिन जो हमारा टेस्टिंग डेटा है, यानी कि जो अनसीन डेटा है, नया डेटा के ऊपर अभी भी हमारा जो एक्यूरेसी है इवन तो हाई है, लेकिन एरर जो है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी जो गलत है वो बहुत ही ज्यादा गलत है. सो अभी हमें इसको और भी ज्यादा ट्रेन होने देना चाहिए. दिस इज हाउ वी ट्राई टू get the meaning out of the thing that we are training. Okay, the algorithm we are training for whichever purpose it is. So by the end of second epoch, our validation loss has increased significantly. Uh, it has become two-thirds of what it was. Right, from 12,000, it has gone down to 8,000. Uh, Training accuracy is 90%, and validation accuracy is 89%, which is really close to each other and is good. The closer they are to each other, the better it is. Now we are to epoch 3, and this will go on for 10 epochs. And 10 epoch basically means 7 more, 8 more epochs, 25 more minutes. So it takes some time, as you can see. It is a really intensive process where millions of calculations are going on. So it is going to take us some time, and this is it for your second project. And I hope you have learned something in this course, and I also hope that you will be able to make something out of it.
use it for some good purpose, basically. So we have used two categorical, we have used this layer, we have used not use Adam. Let's let it train for a few minutes. Meanwhile, if you guys have any query regarding any of the topics that we have studied before today, uh, any assignment or any other thing, you can ask that. Anju, the class is almost over. Okay, we are just waiting for this training to be complete. Okay, as soon as the training is complete, the class will be over. Or I mean, I'll close the video as soon as the recording will be closed as soon as the training is complete. Okay. If any of you have any question, any futuristic, past or present question based on the syllabus that we have studied, the topics that we have studied, you can ask them. सर डॉग्स एंड कैट्स वाले क्वेश्चन में Yes. म्यू इक्वल्स टू 14 क्यों किया था? क्या चीज? म्यू इक्वल्स टू 14 क्यों किया था? Mu is equals to 14 क्यों किया था? हम्म, Okay, which question? You'll have to tell me the question as well so that I could refer to it. जब आपने शुरू शुरू में 2 क्वेश्चंस दिए थे करने के कैट और लिए डॉग वाला दिया था ना? I need to see the questions as well, अच्छा बच्चे. I mean, अच्छा I need to see the questions as well. Send me the question on WhatsApp or here as well if you can. We're into the fourth epoch now, and the validation accuracy is 91.69, and uh, the training accuracy is 91.88, which is really, really close to each other. Training loss is a lot less, 0.2730. Validation loss is decreasing with time. Okay, it is still high, 72, 35.9391, still a lot higher. But as you can see now, there is a good training jump in the accuracy in this particular epoch. The accuracy has jumped from 91.88 to 93.1 something. It looks like we can have an accuracy of 93.5 or more by the end of this particular epoch. The question is statistics student. Let me read it to you on the WhatsApp here. Okay, so the question here. A statistics student interested in sleep habit of domestic cat took a random sample of 144 cats. तो जो sample
सैंपल डेटा है वो 144 कैट्स का है और उसने सैंपल क्या किया है, मॉनिटर किया है उनके स्लीप को और उनके स्लीप का रिकॉर्ड रखा है उसने, ठीक है, 144 कैट्स के लिए। और उसने पाया कि द कैट्स स्लेप्ट एन एवरेज ऑफ 16 आवर्स अ डे। जो कैट्स हैं वो 16 घंटे पर दिन सोती हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू एन ऑनलाइन रिसोर्स, डोमेस्टिक डॉग्स स्लीप ऑन एवरेज 14 आवर्स अ डे। नाउ दिस इज, अब जो लाइन है ये पॉपुलेशन डेटा की बात कर रहा है कि एक ऑनलाइन सोर्स है जो हमें बताता है कि जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं वो औसतन 14 घंटे पर दिन सोते हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड आउट इफ दीज data provide convincing evidence of different sleeping habits for domestic cats and dogs with respect to how much they sleep. The test statistics is 1.73। हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू अपनी तरफ से बता दी है इन्होंने, राइट। Z स्कोर हमें मालूम है 1.73। ओके, द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड हियर इज द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का मीन है म्यू, वो 14 कहाँ गया, 14 आवर्स पर डे हो गया। सर रीजन बीइंग लेकिन हमने म्यूज को, वो तो यस डॉग्स का दिखा रहा है ना, अगर वो पॉपुलेशन में यस, बोलो बोलो। पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ वो डॉग का दिखा रहा है ना, कैट तो इंक्लूड ही नहीं किया उसने। गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट द रीजन इज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोनों को कंपेयर करने के लिए, और दोनों के दोनों हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं। तो हमने अज्यूम किया हुआ है टॉप में कि ये दोनों डोमेस्टिक एनिमल हैं और एक डोमेस्टिक कैट है, एक डोमेस्टिक डॉग है। तो हम दोनों के बीच में इसलिए कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ओके, ओके सर। so that's why the domestic dog which is given by online resource कि 14 hours per day होते हैं। We have taken the population parameter mu is equals to 14 hours and we have taken the sample parameter which is given for the cats of sample of 144 cats, right? X bar equals to 16 hours per day. Okay, the fourth epoch is complete सर and लेकिन the, हम जो सैंपल लेते हैं वो पॉपुलेशन में से ही लेते हैं, तो हमारे पास अगर पॉपुलेशन कैट की होगी तो ही उसी में से हम कैट का सैंपल ले पाएंगे ना। लेकिन हाँ मैं आपने तो हाँ पॉपुलेशन बोलो। डॉग्स की ले ली। आई टोटली अग्री विद यू, बिल्कुल मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूँ, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉग्स और कैट्स को कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज अ कंपैरिजन डेटा, राइट। राइट सर। देखो इसको भी सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने अज्यूम क्या किया है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान के चलते हो कैट अलग है डॉग अलग है, दो अलग अलग कैटेगरी का डेटा, यानी दो डेटा आपके पास अलग अलग है, तो आप इसको कंपैरिजन के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान के चल रहे हो कि दोनों डोमेस्टिक डॉग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं और दोनों एक ही कैटेगरी में, और तब आप इसको कंपेयर करें, तो आप ये वाला प्रोसीजर अपना सकते हो। द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग इज 100% वैलिड। Okay, that's the question you are asking is not wrong. The only difference is between the assumption that I'm taking and the assumption that you are taking. Okay. Okay. In the fourth epoch, the accuracy, validation accuracy has gone down just a minor bit. While the testing accuracy is going up. सर जी एक और बात बताओ कि हम Yes. पी पुल हेड कब यूज करते हैं? क्या चीज पीपुल हेड कब यूज करते हैं? ओके, पीपुल हेड का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग जब भी प्रपोर्शन डेटा की बात करते हैं, यानी हम कैटेगोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें प्रपोर्शन गिवन है और दो प्रपोर्शन गिवन है जिसे हमें कंपेयर करना है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए और सक्सेस रेशियो और सक्सेस फेलियर कंडीशन को चेक करने के लिए जो पॉपुलेशन पी का इस्तेमाल होता था, ठीक है, उसकी जगह पे हम पी पूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन का पी है उसकी जो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली गिवन नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से लेके चलोगे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ही लेते हैं हम लोग वहां पर, राइट। नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर वाली वैल्यू है, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हम मान के चलते हैं, इफ आई कैन शो यू, आई कैन राइट यू। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, राइट, जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या अज्यूम के चलता है, नथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। तो अगर हमारे पास दो है प्रपोर्शन P1 और P2, तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, और जो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बोलेगा समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। तो वो क्या बोलेगा,
P1 minus P2 is not equals to 0. नाउ अब ये जो दो फैक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे इससे हमें वैल्यू क्या मिलती है, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0, ठीक है। लेकिन इस 0 वैल्यू का अगर आप इस्तेमाल करोगे, सक्सेस फेलियर कंडीशन क्या है, n इंटू पी, राइट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और उसके साथ में n इंटू 1 माइनस पी, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब अगर आप यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो P बन के आएगा, P1 माइनस पी की जगह P1 माइनस P2 का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आपको मीन के साथ काम कर रहे होते हैं, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो अगर आप n को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, n को 0 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 1 माइनस 0 उसको ऐसे करके चलोगे, तो ये जो कंडीशन है, ये आपका ये वाला कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, सक्सेस वाली कंडीशन। फेलियर वाली कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हमेशा 10 के बराबर आएगी, आई मीन डिपेंड करेगा n के ऊपर, ठीक है, तो n के बराबर ही आ जाएगी, तो आपका ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है p इंटू 1 माइनस पी, सॉरी, तो p इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय n, उसका अंडर रूट टोटल का, राइट, 0.5। यस बोलो। आई अग्री कि जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन एक जगह आपने बताया कि जब हम एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें आपने बताया कि पॉइंट एस्टिमेट हम कैलकुलेट करेंगे P1 हैट माइनस P2 हैट से, हाँ, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे P1 हैट इंटू 1 माइनस P1 हैट बाय N1 प्लस P2 हैट इंटू 1 माइनस P2 हैट बाय N2 और होल का अंडर रूट, राइट 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 सर। और एक जगह आपने फिर जहाँ पे पी पूल वाला कॉन्सेप्ट आया ना, वहां पे आपने लिखवाया कि हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे पी पूल हेड इंटू 1 माइनस पी पूल हेड बाय ओके N1, तो सर कहीं ना कहीं ये बात तो एक जैसी हो गई ना। ओके, तो आप पीपुल और पीपुल हेड के बीच में कंफ्यूज, मैं आपका क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं पाया हूँ। जो आप पीपुल हेड और पीपुल के बीच में डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो अगर आप, तो मैं बता दूं, हमने वहाँ पे भी पीपुल हेड का ही इस्तेमाल किया था। मैंने उसको पहले बोलते हुए पीपुल बोल दिया था, बाद में उसको करेक्ट भी किया था कि पीपुल हेड ही है। ओके, आई मीन I'll have to go back to the notes for that thing, but the point is पी पूल का इस्तेमाल हम हमेशा, आपका जो स्टैंडर्ड एरर है ना, यहाँ पे भी हम पी पूल का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दो हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पी पूल, राइट, पी अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर हेड इनटू 1 माइनस सेम थिंग पी अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर हेड, राइट, डिवाइडेड बाय N1 प्लस करेंगे, सेम चीज होगा, उसकी जगह N2 हो जाएगा, राइट, और टोटल का अंडर रूट निकालना है, सेम चीज। राइट सर, बट सर कंफ्यूजन ये नहीं है जो आप लिख रहे हो, ये तो मुझे समझ आ गया कि आप क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो। मुझे ये हाँ, समझ नहीं आ रहा कि एक जगह पे हम टेस्ट स्टेटिस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं कि P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस नल वैल्यू बाय स्टैंडर्ड एरर, यस, और एक जगह हम टेस्ट स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करें सिंपली P1 हैट माइनस P2 हैट बाय स्टैंडर्ड एरर, तो मुझे ये दोनों चीजें समझ नहीं आ रही ओके, कि चलो कौन इसके कब लिए यूज करना है। देखो, जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है, देखो बेसिक, इसका आपका जो सवाल का जवाब है वो इसके बेसिक में है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं, पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, माइनस, ये माइनस यहाँ पे क्या होता है, नल वैल्यू हाइपोथेसिस में ले लेते हैं, और यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन, सॉरी सॉरी, प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पर, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं हम लोग। तो जो पॉइंट एस्टिमेट वाला पार्ट है, अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बात करूं, तो एस्टिमेट हमेशा हमारा सैंपल से निकल के आता है। यानी कि अगर मैं मीन के लिए बात करता तो यहाँ पे एक्स बार आता था, राइट। मैं प्रोपोर्शन के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पे पी हैट आता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर का मेथड तो मैंने आपको बताया ही है यहाँ पे जो है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, और हाइपोथेसिस के लिए
स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, ये भी आपको बताया था मैंने साथ के साथ। हाँ सर, यहाँ पे जो आपने पॉइंट एस्टिमेट लिखा है, यहाँ पे हमारा पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा कि P1 हेड माइनस P2 हेड, P2 है ना? हाँ हाँ। इसको पॉइंट एस्टिमेट जो होगा आपका, आप हमेशा ब्रैकेट में करके लिखता था, इसीलिए मैं P1 P1 हेड माइनस P2 हेड, ठीक है, ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है, प्लस माइनस यहाँ पे आप अपना जो भी स्टैटिस्टिक है, ठीक है, उसकी वैल्यू उठाते थे, यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर होता था हमारे पास, ठीक है, अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे अपना स्टैटिस्टिक का यूज करते थे और उसको स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, तो z के लिए z हो जाता था, p के लिए t हो जाता था, राइट, और यहाँ पे p है तो p का अपना खुद का क्या नाम है, स्टैटिस्टिक है, ठीक है। जब दूसरी बात की हमने, ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हो गया, ठीक है, लेकिन जब हाइपोथेसिस टेस्ट की बात करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट, अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा जब हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट एस्टीमेट माइनस नल वैल्यू, यहाँ पे ना नल वैल्यू को माइनस करते हैं हम लोग हमेशा, और उसको डिवाइडेड करते हैं स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो नल वैल्यू तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे जो नल वैल्यू की जगह आप पी पूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पी पूल से इसका लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे पी से इसका कोई लेना देना है, यहाँ पे इसको नल वैल्यू से ही लेना देना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नल वैल्यू हमारे पास आई है P1 माइनस P2 इक्वल टू 0, हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंस मेरा 0 है और पॉइंट एस्टिमेट लेट्स सपोज मेरा क्या है P1 हेड, ठीक है, माइनस P2 हेड, ये मेरा पॉइंट एस्टिमेट हो गया, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा नल वैल्यू, वो क्या है मेरी 0, और मैंने डिवाइड कर दिया इस टोटल टर्म को स्टैंडर्ड एरर के साथ, और स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, पी पूल का इस्तेमाल करके, जो कि हमने जिसका फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो पॉइंट एस्टिमेट जो है वो तो वही रहेगा, यहाँ पे 0 माइनस अगर मैंने किया है तो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो नल वैल्यू है, ठीक है, इसका पी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, और हमने पी पूल का इस्तेमाल स्टैंडर्ड एरर में अगर किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि मैं वहां पे ये P1 माइनस P2 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पास पॉपुलेशन के लिए उसकी कोई अलग वैल्यू गिवन नहीं है, पॉपुलेशन के लिए P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 ही वैल्यू है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करता हूँ अंडर रूट के अंदर मैं 0 डालता हूँ अगर, तो वो तो मेरा मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, राइट। सर जी, फिर भी नल वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहनी है, तो उसको माइनस करो या ना करो क्या फर्क पड़ेगा? देखो आप तो ऐसे बोल सकते हो, लेकिन जब जनरल तरीके में हम किसी भी बात करते हैं ना, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू, आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि नल वैल्यू यहाँ 0 है तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो सिर्फ तब के लिए है जब भी हम कोई प्रपोर्शन के साथ काम करें, जैसे कि हम मीन में भी प्रपोर्शन के साथ जब जब मीन के अंदर दोनों को कंपेयर कर रहे थे और x1 माइनस x2 0 आ रहा था वहां पे, सॉरी mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो वहां पे भी तो हम यही काम कर रहे थे, पॉइंट एस्टिमेट माइनस 0 ही कर रहे थे, राइट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर for Z statistic and T statistic, for T statistic I mean, right? T statistic में जब हमने दोनों का कंपैरिजन किया था इंडिपेंडेंट वाले में, तो भी तो हमने यही काम किया था, वहां पे नल वैल्यू 0 थी वहां पे भी। सर जी, ये जो आप नल वैल्यू को माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट लेके आए, ये तो सिर्फ आप प्रोपोर्शन में लेके आए ना, इससे पहले तो हर जगह हमने सिंपली ऐसे ही किया था कि ऑब्जर्व माइनस में नल करके बाय में स्टैंडर्ड एरर। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, ये कोई ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने नल लिख दिया, नल वैल्यू लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। अगर आप उठा के देखो, मीन से उठा के देखो, जब हमने स्टार्टिंग किया पहली बार हमने हाइपोथेसिस टेस्ट पढ़ा था सिंगल मीन के लिए, तो भी फॉर्मूला यही था, पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। जब हमने टी स्टैटिस्टिक में आए सिंगल मीन के साथ काम किया, तब भी हमारा यही था, पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। उसके बाद हमने टी स्टैटिस्टिक पढ़ा फॉर कंपैरिजन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मीन्स, वहां पे भी हमने क्या किया, पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। उसके बाद हमारा आया कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स डिपेंडेंट मीन्स, वहां पे भी हमने क्या किया, पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। फिर हमने पढ़ा
फिर हमने पढ़ा, हमारे इसके बाद आया ये काय स्क्वायर टेस्ट हमने पढ़ा, राइट। काय स्क्वायर टेस्ट में सेम फॉर्मूला है, पॉइंट एस्टिमेट माइनस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। जो चीज बदलती है वो ये होती है कि स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आप सभी फॉर्मूले को ना एक साथ लिखो, एक बड़े चार्ट पेपर पे बनाओ, या फिर एक बड़े पेपर पे लिखो, ये जी के लिए है, ये टी के लिए है, ये टी के अंदर इंडिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट के लिए, सिंगल मीन के लिए है, और ये काय स्क्वायर में है, ये काय स्क्वायर में सिंगल मीन के लिए है, कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स के लिए। अगर आप एक साथ सभी को लिखोगे और सभी का टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, टी स्टैटिस्टिक एक रो बना लिया आपने, सभी के लिए लिखा, तो आपको नजर आएगा टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपका हर एक जगह सिर्फ दो चीजें चेंज हुई है कि आप पॉइंट एस्टिमेट कैसे लेते हो, कंपैरिजन है तो x1 माइनस x2 हो जाता है, राइट, अदरवाइज वो x बार रहता है बस, ठीक है। यहाँ पे P1 माइनस P2 हो जाता है, अदरवाइज P1 हेड माइनस P2 हेड हो जाता है, कंपैरिजन में सिंगल है तो P1 हेड रहता है बस। और दूसरी चीज जो बदलती है वो होता है स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का तरीका। स्टैंडर्ड एरर ओके सर, अगर आप वहां समझ पे गई मैं। समझ गए ना, स्टार्टिंग में क्या था हमारा, स्टार्टिंग में क्या था, s डिवाइडेड बाय रूट n, अंडर रूट n, राइट। तो जी स्टैटिस्टिक के लिए, फिर हम टी में चेंज हुआ, एफ में चेंज हुआ, और अब यहाँ पे काय स्क्वायर में भी चेंज हो गया, सेम चीज। ओके सर। सर बस ऐसे ही चेंज हो रहा है ना कि हमारे पास सिंपली टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला है ऑब्जर्व माइनस नल, और जब प्रोपोर्शन वाली बात आती है, जब दो के बीच में डिफरेंस या कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे ऑब्जर्व वाला फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जैसे कि इसमें चेंज हो गया P1 हेड माइनस P2 हेड करके। हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्व बोल लो, पॉइंट एस्टिमेट बोल लो, बात एक ही है हर जगह, ठीक है। हाँ ठीक है सर। Okay, let's see how much of it is trained. Okay, we are into the ninth epoch and the accuracy has gone really high. 95% हम सिर्फ 8th epoch में पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर। Validation accuracy went down. That is a surprise. Which means it needs more training than it is taking right now. और हमारा validation loss भी बढ़ गया है। सर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा हाँ, उसके अंदर ये सब कोडिंग यूज करनी है क्या हमें? देखो आपको जो मैंने प्रोजेक्ट आप, एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि बिफोर मंडे मैं आप चाहता हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं, वो अपना ग्रुप बता दें मुझे, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्टली लेते हैं या फिर जो लोग क्लास के बाद वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही तरह के लोग मुझे अपना ग्रुप बता दें कि वो किस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। ग्रुप 1, 2 या 3 का ही हो सकता है, आप अकेले काम कर सकते हो या एक फ्रेंड के साथ या दो फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो आप मुझे अपना नाम सबमिट करोगे, फिर मैं आप लोगों को इंडिविजुअली सभी लोगों को अलग अलग डेटा सेट देने वाला हूँ, और आप उसके ऊपर डेटा, आपका काम है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना। यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड द आंसर्स, बोथ थिंग्स। एंड जो भी सवाल आपके पास आए उसका हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म करना है ये आपको डिसाइड करना है, और उसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि उस डेटा के ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन भी परफॉर्म करोगे अगर आपको लगता है तो। दैट पार्ट, लीनियर रिग्रेशन पार्ट इज ऑप्शनल दो, बट बाकी सब तो आपको करना पड़ेगा। डेटा एक्सप्लोरेशन तो आपको करना ही है कि ये डेटा है, आप उसका आप उसको प्लॉट करके देखोगे, आप उसका हिस्टोग्राम बनाओगे, आप उसका डिस्ट प्लॉट बनाओगे, डेंसिटी प्लॉट बनाओगे, आप काउंट प्लॉट उसको बना के चेक करोगे कि मतलब काउंटिंग वाइज इसका कैसे है, कितना मेरा डेटा के अंदर हर एक कैटेगरी का डेटा कितना है, राइट। ये सब चीजें आप टेस्ट करने वाले हो अपनी तरफ से। और मुझे संडे कल रात खत्म होने तक आप लोग मुझे नाम बताओगे कि, क्योंकि मंडे को फिर मैं आप लोगों को डेटा सेट मॉर्निंग में भेज दूंगा, एंड देन यू विल हैव 15 days टू सबमिट योर असाइनमेंट। सर जी एक और बात है कि वो जो क्वेश्चन है जिसमें अनयूजुअल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो क्वेश्चन सोल्व हो गया, उसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उस क्वेश्चन की जो हम स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं ना, उसमें अनयूजुअल और नॉट अनयूजुअल वाला टॉपिक आ रहा है। तो ये तो है नहीं कि नॉट अनयूजुअल कह रहे तो इसका मतलब वो यूजुअल है। हाँ बिल्कुल, देखो मैथमेटिक्स में चीज ऐसी है कि कई बार इसमें घुमाया जा सकता है। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो सही है वो गलत हो, और जरूरी नहीं है कि जो गलत हो वो सही, गलत ना हो वो सही हो। आप जिस डिलेमा पे हो उस डिलेमा को मैं समझ रहा हूँ, बट हम यहाँ पे ना सिंपल केस मान के चल रहे हैं, बाइनरी केस, कि सही है
तो गलत नहीं है, गलत है तो सही नहीं है, बाइनरी केस मान के चल रहे हैं, इसीलिए यूजुअल नॉट यूजुअल के बाद हमने वहाँ पे सिंपल तरीके से उसको सॉल्व किया है बाइनरी कंडीशन लेके। तो आप ये बता दो कि अनयूजुअल और नॉट अनयूजुअल में क्या डिफरेंस होगा? अनयूजुअल का मतलब ये है कि जो यूजुअल नहीं है, यानी कि जो कॉमन नहीं है, जो जनरल नहीं है, जो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो हो गया अनयूजुअल। नॉट, ठीक है, नॉट यूजुअल भी सेम चीज ही हो गई, नॉट यूजुअल और अनयूजुअल दोनों सेम चीज हो गई यहाँ पर, जब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बाइनरी है क्लासिफिकेशंस का। Okay, for some reason the validation accuracy is going down and down and down. Quite a training here. I'm going to share the complete code as well with you guys. Okay. At the end of the day, I'll share the complete code जिससे कि आप अपने सिस्टम पे भी रन करके देख सको, और मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे कोड को समझो। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर मैं ऊपर वाला पार्ट छोड़ दूँ तो हमने numpy को इंपोर्ट किया एज np, matplotlib.pyplot को इंपोर्ट किया एज plt, हमने sklearn जो कि लाइब्रेरी हमारा scikit-learn हमने इंस्टॉल किया था, उसमें से मॉडल सिलेक्शन के अंदर गए और उसके अंदर से एक फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हमने उसको इंपोर्ट किया है। हमने sklearn.matrix में से कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया है। हमने केरास के अंदर गए, उसके अंदर यूटिल्स, उसके अंदर np_utils, उसके अंदर हमने टू कैटेगोरिकल फंक्शन को निकाला जो कि वन हॉट एनकोडिंग के काम आता है। फिर हमने सीक्वेंशियल को निकाला keras.model के अंदर से, क्योंकि ये मेरा सीक्वेंशियल मॉडल है, एक के बाद एक लेयर सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने keras.layers लिया, यानी कि हर एक लेयर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने एक डेंस लेयर लिया है जो कि मेरा फुली कनेक्टेड लेयर की तरह काम करता है। मेरा ड्रॉप आउट है जिसका मैंने यहाँ पे अभी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा कुछ खास नहीं है बट अलग है। फिर मैंने फ्लैटन लेयर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जो कि क्या करता है 28x28 अगर डेटा है, अगर मेरा 2D डेटा है तो उसको 1D में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये मेरा कॉन्वोल्यूशन लेयर इस्तेमाल कराया था, कॉन्वोल्यूशन 2D का इस्तेमाल किया है। अगर मुझे मैक्स पूल अगर मुझे पूलिंग लेयर का इस्तेमाल करना है जिसमें जो कि मैक्स वाला काम करना हो, तो मैंने मैक्स पूल 2D का इस्तेमाल किया है उसके लिए, ठीक है। और मुझे डेटा चाहिए था एमनिस्ट, जो कि मेरा केरास के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, इसका मुझे डाउनलोड करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो मैंने किया फ्रॉम keras.datasets import mnist, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा सेट जो रिट्रीव करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है इसके अंदर, x_train, y_train, ये एक टपल हो गया, दूसरा x_train, y_train टेस्ट, दोनों, ठीक है। ये दो अलग अलग टपल्स के फॉर्मेट में मुझे आउटपुट मिलता है एमनिस्ट का यूजिंग द लोड डेटा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इमेजेस को शो किया है, 10 जो टॉप के 10 इमेजेस हैं, मैंने इसको यहाँ पे शो करने का यहाँ मेथड मतलब फॉर लूप लिखा है जो कि 10 बार रन करेगा और 10 इमेजेस को आपको शो करेगा। मैंने एक टेस्ट डेटा लिया है, उसका डेटा रीशेप किया है, 60,000 इमेजेस है, तो x_train.shape 0, शेप 0 क्या है, वो 60,000 है, ठीक है। 60,000 इंटू उसका आगे क्या है 28 इंटू 28 इंटू 1, ये मेरा डेटा का फॉर्मेट हो गया, सिमिलरिटी टेस्ट के लिए हो गया। और जो मैं चाहता हूँ डेटा टाइप हो मेरा, वो क्या हो, फ्लोट 32 हो, तो मैंने np जो numpy से उठाया मैंने as टाइप, मैंने as टाइप इसका चेंज कर दिया फ्लोट 32, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, डेटा को नॉर्मलाइज किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक वैल्यू 0 से 255 के बीच होने के बजाय 0 से 1 के बीच में हो। उसके बाद मैंने वन हॉट एनकोडिंग किया है, जिसका कि मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये बताया, ठीक है। फिर मैंने न्यूरल नेटवर्क बनाने की शुरुआत की है। सबसे पहले मैंने सीक्वेंशियल लिया, सीक्वेंशियल जो कि सीक्वेंस में चीज़ों को ऐड करता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कॉन्वोल्यूशन लेयर ऐड किया, फिर मैंने पूलिंग लेयर को ऐड किया, फिर मैंने डेटा को फ्लैट किया, फ्लैट करने के बाद मैंने उसको फुली कनेक्टेड लेयर में पास किया, फिर मैंने उसको आउटपुट लेयर में पास किया, फिर मैंने लॉस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया, और फिर मैंने उसका समरी देखा कि मेरा मॉडल दिखाई कैसे देता है, और फिर मैंने मॉडल को फिट कर दिया, ठीक है। फिट करने के बाद मैं ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये काम भी किया है। तो हमने देखा कि हमारी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है इस केस में कम होती जा रही है, विच मीन्स कि हमें कुछ और भी बदलाव करना चाहिए था इसके अंदर। कुछ चीजें और भी हैं जो और भी बेहतर कर सकते हैं, कुछ चीजें और भी हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली ट्रेन आवर मॉडल, ठीक है। तो
कई बार मैं आप लोगों को क्लास थोड़ा जैसे कि स्टार्टिंग डे से बताया था कि कई बार आपका 2 से 3 दिन लग जाता है मॉडल को ट्रेन करने में। दिस वाज अ रियली बेसिक मॉडल, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स नहीं थे, सिर्फ 100 था इसके अंदर। और जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं तो हम यहाँ पे 2048 का भी इस्तेमाल करते हैं, 4096 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े बड़े लेयर्स होते हैं और एक से ज्यादा बार ये जो है कॉन्वोल्यूशन और पूल हो सकता है इसको 4 4 6 6 8 8 10 10 बार, जैसे कि अभी हमने एक और देखा था एग्जांपल में, वहाँ 36 टाइम्स यूज किया गया था इस चीज को। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स करोड़ में होते हैं, कई करोड़ होते हैं, मतलब 100 करोड़ भी क्रॉस कर जाते हैं कई बार। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कई बार टाइम भी ले जाता है बहुत ज्यादा। न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइम टेकिंग एल्गोरिथम एज वेल। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन हमारा टास्क कैसा है, हमारा काम क्या है, उसके बेसिस हम डिसाइड करते हैं सारी चीजें। आई होप कि आप लोग इसको मॉडल को घर पे ट्राई करेंगे एंड आप लोग और भी डेटा सेट्स हैं, जैसे कुछ डेटा सेट मैं आपको बता दूं, सिफार 10, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ले सकते हैं एमनेस्ट, फैशन एमनेस्ट, फैशन, ठीक है। उसके अलावा और भी इमेज क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डेटा हैं जिनका आप, फेमस डेटा सेट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप सर्च करोगे तो आपको और भी मालूम पड़ेगा, पर ये 2 और तरीके के डेटा हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जिनका आप सर्च कर सकते हो। ये जो कोड है ये आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इट विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू एंड दिस वाज द सेकंड प्रोजेक्ट फॉर यू गाइस एंड विद दिस आवर the data analysis and visualization course comes to an end. I hope you guys learned something valuable, something that will take you guys forward in your career. Thank you guys. I'm closing this session right away. I mean, I'm available for all any queries if you still have, and the recording will stop now. Thank you.